So let us move ahead. Uses of dimensional analysis. We use number 2. So use number 2 is to establish the correctness to establish the relationship correctness to first the relationship between related physical quantities between related physical quantities दोनों में क्या रिलेशन है? अभी मुझे एक सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूँ। एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, ध्यान से समझना। मुझे सिंपल सा आंसर करो जो भी आपके दिमाग में। एक सिंपल पेंडुलम जिसका लेंथ है L, ये ऑसिलेट करेगा बराबर, जिसका मास है M। अभी इसका जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन विच फैक्टर इट डिपेंड्स? समझ में आ रहा है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट? Length of the simple pendulum and gravity. Correct. Sabas. Period of simple pendulum depends only upon two things, that is length and this gravity. Okay, so we can say T, period is T, is directly proportional to L, we don't know power, into G, also we don't know power. Getting it? Yes, sir. So yes, we have to find out this power using dimensional analysis. Similarly, we can see two or more examples like this, in which we will be able to know the relation between related physical quantity. Here, the period of oscillation is related with two other quantities like length and gravity. That is the mass, gravity. कितना इसका जितना ज्यादा इसका मास होगा उतना उसका पीरियड कम हो जाएगा, जितना इसका लेंथ ज्यादा होगा उसका पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है? सो वी हैव टू फाइंड आउट द पावर्स x and y. So we can say T is equal to K into L raised to x into G raised to y, where K is constant. ठीक है? चलो अभी मुझे बताओ, on your left hand side where T is equal to period, that is time, correct? Period of oscillation टाइम, तो टाइम किसमें आएगा? T1, बाकी के दोनों 0 0। K is constant, L is length of simple pendulum, length of simple pendulum, length is in meter, so it will be L1, correct? बाकी के दोनों 0। G is acceleration due to gravity। यहाँ पे नहीं समझा प्लीज रोक देना। So this is meter per second square, e raised to -2. Write this down.
और बताओ मुझे क्या क्वेश्चन है, क्या डाउट है। Now we have to find out the powers so that we can find the relationship between related physical quantities. Use number 2. Last time we have seen use number 1, in which we have seen the correctness of physical equations. उसमें हमने 3 फिजिकल इक्वेशंस को चेक किया था। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के जितने भी डायमेंशन है वो सब सेम आने चाहिए, वो चेक करके फिर नाउ वी आर ऑन द सेकंड एग्जांपल, सेकंड यूज। हो गया, यहाँ तक हो गया तो बोलना। हो गया सर। कोई डाउट? हो गया मतलब आपने जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है वो लिख के हो गया। बस आगे बढ़ सकते। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। आगे बढ़ता हूँ, ये निकाल रहा हूँ मैं ये साइड, जिसका बाकी है तो लिख सकते। Now we will just substitute in this. So in our left side it is m0 p1, correct, is equal to k. K is constant, उसका कोई यूनिट नहीं, डायमेंशन नहीं है। l raised to x, l1 raised to x and l1 m0 t minus 2 raised to y. Getting it? So यहाँ पे you have t1 only. I can write t1 k raised to, multiply करो power l raised to x, power multiply l raised to y, m raised to 0, t raised to minus 2y. Now base same है, so we can add power. Base same है तो we can add power l raised to x plus y, t raised to 0 और यहाँ पे t raised to minus 2y आ गया। Now ये दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन है, सो वी कैन कंपेयर पावर्स। यहाँ पे t1 है, यहाँ पे l है, सो यू कैन से l raised to x plus y equals to l raised to 0, correct, and t raised to 1 is equal to t raised to minus 2y। तो पावर को कंपेयर करना है तो x plus y equals to 0 and 1 equals to minus 2y. So x equals to minus y and y equals to minus 1 upon 2. And similarly, x is equal to minus of minus 1 upon 2. X is equal to half. क्या नहीं समझा पूछो। अगर आपको पूरा लिखना है, you can write पूरा also. L0 M0 T1. Again, you can write here L0 M0 T1. So now you can compare x plus y with 0, minus 2y with 1. So you get x and y का value. So we can say T is equal to, क्या नहीं समझा पूछ सकते हो, क्या नहीं समझा you can ask. So you can say T is equal to k into L raised to x g raised to y. So T is equal to x का value half, g का value minus half. Again I can write L raised to half upon g raised to half minus है power. And अगर half निकाल दूँ तो मैं रूट लिखूंगा L upon g. K is constant
and can be found experimentally. That's it. This is the relation between period of oscillation, length, and acceleration due to gravity. But sir, in period of oscillation formula, there has to be pi also, na? I think. We have K here. So by experiment, we have written here, na? K is constant and can be found out by experimenting. Oh. What we are only concerned about the relation between physical quantities. We are not concerned about the constants. Okay. बोलो क्या डाउट क्या क्वेश्चन नंबर 2 concept Sir, left hand side का दिख नहीं रहा है. Can you shift your camera a little yes, bit? yes. And Thank you, sir. Yes. please ask the question if you have any doubt. No doubt, sir. Vaishnavi, No doubts. Shruti, Shlok, Sharik, Viraj. No, sir. विराज जवाब दे विराज No, तेरा sir. आवाज विराज का जवाब नहीं आता विराज जवाब No, sir. शाबाश शाबाश तेरा क्रिकेट चालू है कि बंद है रे बंद है सर. अरे कभी बोला कभी चालू करने वाला कुछ पता नहीं. नॉकिंग चालू है कि कुछ नहीं फिटनेस नॉकिंग क्या करता है फिटनेस. करता है ना रोज हाँ. छुट्टी आ गई क्या तू Yes, sir. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग Good morning, sir. यस ये समझा क्या कि बीच में से ज्वाइन हुई श्रुति इज दिस क्लियर Sir, can you explain? अभी मैंने थोड़ा निकाल दिया बट हमने क्या किया है एक सिंपल पेंडुलम दिया था जिसका हमने टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन length and its mass or acceleration due to gravity. So first thing is we have written here t is equal to L raised to x g raised to y. Then constant को निकाला तो क्या आ जाएगा तो t is equal to k into L raised to x g raised to y. Then now we need to find out the power of L and g with respect to time. Now time है तो इसका डायमेंशन आएगा L0 M0 T1 K is constant length L1 raised to x G acceleration due to gravity L1 M0 T minus 2 raised to y ये क्या एज इट इज रहेगा इसको कुछ नहीं करने का L1 का पावर x है तो 1 into x हो गया x y into 1 हो गया y 0 into y 0 minus 2 into y minus 2y अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है एंड बेस सेम है तो पावर ऐड होगा L का पावर L के साथ x plus y यहाँ पे t नहीं है that is 0 0 plus minus 2y will be minus 2y now ये दोनों के बीच में equal to का साइन है that means ये दोनों डायमेंशन इक्वल है तो L के पावर को L के पावर के साथ कंपेयर किया t के पावर को t के पावर के साथ L का पावर यहाँ पे है 0 यहाँ पे है x plus y so we can say 0 equals to x plus y और यहाँ पे n का पावर कोई भी नहीं जाने दो t का पावर है 1 t का पावर minus 2y 1 equals to minus 2y यहाँ पे y का वैल्यू minus half मिल गया from this we can write x equals to minus y x equals to minus of minus 1 upon 2 that is 1 upon 2 now we have two values of x and y का values है half and minus half we'll substitute here L raised to x g raised to y L raised to half minus half पावर माइनस है उसको नीचे लेके गया प्लस कर दिया हाफ निकाल दिया will be root k का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से अपन फाइंड कर सकते हैं जैसे
I think श्लोक ने बोला it should be here pi. But वो अपने को कंसर्न नहीं है. It is not. It is 2 pi. It is not 2. It is pi. K equals to 2 pi. But ये जरूरत नहीं है. ये नहीं भी लिखा तो चलेगा. Only we are concerned about the power. राइट हैंड साइड में सेकंड लाइन में एल का पावर क्या है? हाफ ना? राइट हैंड साइड पे एल का पावर हाफ और माइनस हाँ. x की वैल्यू मैंने हाफ निकाली ना इधर. x इज इक्वल टू हाफ. ओके. यहाँ पे x की वैल्यू हाफ, यहाँ पे y की वैल्यू माइनस हाफ. फिर ये माइनस नीचे लिखा प्लस हो गया और ये हाफ की जगह पे रूट आ गया. ओके. छुट्टी समझा? Yes, sir. चलो अभी मैं इसमें आपको और दो तीन एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करना. फाइंड आउट relation between kinetic energy is directly proportional to mass into velocity. अभी आपको मालूम है kinetic energy का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर. तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू हाफ. लेकिन आया कहाँ से? हम बचपन से यूज करते हैं kinetic energy is equal to half mv square. बट आया कहाँ से? तो आपको यहाँ से पता चलेगा x का वैल्यू 1 आना चाहिए, y का वैल्यू हाफ आएगा. आप सॉल्व करोगे तो then potential energy is directly proportional to mass into gravity into height. Find out the powers. So you can say this can be written as x and y only. X, y and z. Okay. And one more. Density is related to mass into volume. तो ये मत करो, ये जो करो बताओ क्या करो. Solve these two in same manner. नहीं आएगा तो मुझे पता, मैं करता हूँ. ट्राई करो, नहीं आएगा तो भी बोलो. हाँ देखो सेम मैनर से करना. हाँ A is equal to 1 और B is equal to 2 आ रहा है. 2 नहीं, हाफ आना चाहिए. हाँ 2 आना, सॉरी 2 बराबर है. 2 आ रहा है. एडवांटेज करेक्ट है, बहुत अच्छी. सर सॉल्व इट नो वन सर. यस. चल मुझे बताओ A is your kinetic energy. करेक्ट. इसका मुझे डायमेंशन बता. M is your mass, V is your velocity. मास आएगा L0,
M1 T0 मतलब सिंपल आएगा M1 M0 T माइनस एनर्जी का यूनिट बताओ, डायमेंशन बताओ। हरी Yes, sir. हाँ M kinetic M1 L raised to 2 T raised to minus 2. L2 M1 T माइनस 2 ये लिख दिया मैंने एनर्जी M2 M1 T माइनस 2 ये इनटू M क्या है तेरा L0 M1 T0 रेज टू X एंड इनटू V क्या है तेरा M1 M0 T माइनस 1 रेज टू Y। ठीक है, अभी बेस से में पहले तो x को अंदर डाल दो और उधर से y को अंदर डाल दो, so what you will get here, जो नहीं समझा हो तभी पूछना। L1 L2 T L2 M1 T minus 2 equals to K into L0 सर वो कैसा है ऊपर का कौन सा फर्स्ट लाइन? x है ना यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन है, ये देख इधर, ये इक्वेशन में पुट कर दे K equals to K into M raised to X V raised to Y। तो ओके ये तेरा m और ये भी है, तो ये इसका डायमेंशन का पावर x, इसका डायमेंशन का पावर y। ओके, तो वो फर्स्ट क्या है L स्क्वायर M1 T raised to minus 2 ये तो ये तेरा लेफ्ट हैंड साइड है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके तो ये काइनेटिक एनर्जी एज इट इज आ गया। ऑन माय राइट हैंड साइड k mx vy है, k mx vy, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, k का k m रेज टू x v रेज टू y, m की जगह पे है v की जगह पे है पावर xy। समझा? यस सर। नहीं समझा ना बोला, m रेज टू x p रेज टू 0 L1y M0 T minus y। चलो सेम L1 T minus 2 K into ये पावर सेम बेस ऐड कर दे, अरे बेस से पावर ऐड कर दे 0 प्लस y m रेज टू x t रेज टू माइनस y। अभी हम कंपेयर करेंगे पावर्स को लेफ्ट हैंड साइड m रेज टू 2 तो y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1 आ गया। So we can say AE is equal to K into M raised to 1 V raised to 2. So we can say K is equal to K into M V square. सर टी Value के of ऊपर K भी can be, माइनस y है, उसको नहीं करने का है। वो तो आ जाएगा ना, ठीक वापस y का वैल्यू 2 आएगा, ओके but you need to find out the times। करोगे तो y की वैल्यू 2 बार मिलेगी आपको, is equals to value of K can be found out experimentally, K will be equals to half। हर बार आपको मालूम होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं लिखेगा। सर मेरा पोटेंशियल एनर्जी का भी हो गया, और ये A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू 1 ऐसा आया। शाबाश, वेरी गुड। 1 1 1, so potential energy is equal to m into g into h। शाबाश। वैष्णवी आया, विराज आया, श्रुति तो काइनेटिक एनर्जी का बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी का करूंगी। चल गया, ओके हो जाएगा तो बोलो।
सर हो गया पोटेंशियल एनर्जी। हो गया mgh 111 पावर 111 यस सर, यस सर। वेरी गुड। वेट करते हैं सबके लिए, हो जाएगा तो बोलिएगा। This is the use of dimensional analysis by which we can find out the relation between related quantities. ये सब इक्वेशन हमने बचपन में देखा था, लेकिन फॉर्मूला कैसे आया वो हमको कभी किसी ने बताया नहीं. बट बाय द यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन, वी कैन फाइंड आउट द पावर्स. फर्स्ट यूज ऑल्सो जो हम लोगों ने इक्वेशन देखा था वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो भी इजी था, ये वाला भी इजी है. Now we are moving on to the third use, conversion factor निकालना. So can you solve potential energy one? Yes. एनर्जी वापस तेरा सेम कंसेप्ट आएगा. एनर्जी इज द यूनिट सेम m1 p minus 2. Potential energy directly proportional to n raised to x g raised to y h raised to z. So potential energy is k into n raised to x g raised to y h raised to z. So energy का formula will be same. M is mass, will be same. G is acceleration due to gravity. So this will be per second square. And last one is h, which is height. Height is measured in meter. M1 M0 M0. And substitute in our main equation. सर हाइट नहीं दिख रहा है. Height M1. Height is in meter. Meter मतलब length. N1. K into m raised to x, g raised to y, h raised to z. What is P? Dimension of P? L2 N1 P minus 2. Correct? K we don't know. M mass. L0 L1 P0 raised to x. G acceleration due to gravity. L1 M0 T minus 2 raised to y. And height go L1 into raised to power z. बाकी के दोनों 0 से power z. ये अभी मल्टीप्लाई करो पावर x y z के साथ. So 0 0 आएगा L0 mx d0 Ly m0 t minus 2y and L raised to z. Okay, अब यहाँ पे L का पावर L का ऐड कर दो. सर कैमरा को थोड़ा मूव करो ना, राइट हैंड साइड पर नहीं दिख रहा है. अभी L का पावर यहाँ पे 0 y और z, तो you can write here L y plus z. L का पावर x, only x, ये दोनों तो 0 0. T का पावर 0 minus 2z minus 2 plus z. So now we compare powers. L का पावर यहाँ पे है 2, यहाँ पे है y plus z. N का पावर 1 is equal to x. ये आंसर मिल गया. यहाँ पे है -2 -2y इसका वैल्यू -2 है ना. यहाँ पे 0 -2y. -2y है Yes, इधर -2y. So again y is equal to y. अभी यहाँ पे डाल देता हूँ 2 is equal to y का वैल्यू 1, z का वैल्यू z is also equal to 1. So we got the answer. Potential energy is, now we लिखता हूँ. So potential energy is K into M into G into H
क्या नहीं समझ में आया? सर वो कंपेयरिंग पावर में हम्म, 2 इज इक्वल टू वाई प्लस जेड और उसके नीचे क्या है? y की वैल्यू 1 आ गई, तो y का वैल्यू 1 डाल दिया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस z, तो z का वैल्यू 1, 2 माइनस 1 विल बी 1. Now moving on with use number 3. तो फाइनली कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा, बोलो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. To find the conversion factor between two units of same physical quantity between the units of same physical quantity into two different system of units. कितने तरीके के सिस्टम है आपके पास? राज, कितने सिस्टम्स हैं? एक मिनट, विराज कितने तरीके के सिस्टम? नहीं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मैं पूछ रहा हूँ सिस्टम. 4. हाँ वैष्णवी बोल. 4. कौन से? CGS, MKS, FPS and SI system. अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? SI system. SI सिस्टम. अभी इसमें क्या बोलना चाहते हैं, ध्यान से समझना. एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर अपन को स्विच करना है, इफ यू हैव टू स्विच फ्रॉम MKS टू CGS, तो अपने को एक कन्वर्जन फैक्टर चाहिए रहेगा कि नहीं? मतलब Yes, अगर मैंने need. लेंथ मीटर में लिया है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या सेंटीमीटर में लिया उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कन्वर्जन चाहिए ना. हाउ मच मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर. Yes, sir. 1 gram is equal to how much kg? Yeah, 1 kg is equal to how much gram? That is called as conversion factor. 1 meter is equal to how much centimeter? That is the basic thing. वो लेंथ मास टाइम का कन्वर्जन मालूम है. मिनट्स को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स को आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स को सेकंड में कैसे, ये सब अपने को मालूम है. लेकिन अगर मैं आपको बोलता हूँ फोर्स का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स का? तो तुम फोर्स का SI यूनिट या फोर्स का यूनिट आपने क्या सुना है? फोर्स किस में मेजर होता है? एनीवन? न्यूटन. न्यूटन. शाबाश, न्यूटन में मेजर होता है. ये कौन सा सिस्टम है? SI सिस्टम. SI सिस्टम, बराबर है. या MK सिस्टम. SI and MKS both are same because SI is derived from MKS. So I can say MKS सिस्टम में फोर्स मेजर होता है न्यूटन में.
नाउ कैन यू टेल मी सीजीएस सिस्टम में फोर्स किस में मेजर होता है? सुना है क्या? न्यूटन तो सब लोगों को सुना भी, आपने सॉल्व भी किया, फोर्स निकाला एम इनटू ए। डाइन। शाबाश, बहुत ही बढ़िया श्लोक, वेरी गुड यार। तो न्यूटन एंड डाइन। तो आई वांट टू नो नाउ व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर ऑफ न्यूटन टू डाइन? हाउ विल कन्वर्ट डाइन टू न्यूटन और न्यूटन टू डाइन? बोथ आर द यूनिट ऑफ फोर्स ओनली बट इन टू डिफरेंट सिस्टम। सो मुझे ये मालूम होना चाहिए न्यूटन टू डाइन कैसे कन्वर्ट करना है या डाइन टू न्यूटन कैसे कन्वर्ट करना है। हाँ, ये इसका यूज है। दूसरा, एनर्जी का यूनिट क्या है? In MK system, what is the unit of energy? And what is this? Is MK system? Huh? Yes. MKS. Joule and org. Exactly. ये मेरे को X मालूम है. We don't know how much is the conversion. ERG CGS system में org आता है. भाई आपको नहीं मालूम होगा, आप लिख लो। हाँ, 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्ग, ERG। जे कैपिटल आएगा, ये स्मॉल आएगा। जूल कैपिटल है साइन कन्वेंशन के हिसाब से यूनिट्स में। जूल नेम है साइंटिस्ट का, कैपिटल आएगा, ये अर्ग आएगा। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कन्वर्जन फैक्टर, दैट इज दिस एक्स। अभी बहुत ध्यान से समझना, बराबर। ये सिस्टम है MKS और ये सिस्टम है CGS। अभी मुझे श्रुति बताएगी MKS सिस्टम में क्या क्या, किसमें किसमें क्या मेजर होता है। मतलब MKS सिस्टम में लेंथ, मास, टाइम किसमें मेजर होता है? The length in meters, mass in kg, and time in second. करेक्ट। और CGS में क्या होता है? Length in centimeters, mass in grams, and time in seconds. करेक्ट। अभी उसी को यूज करना है। हाँ शारिक, एनर्जी 1 जूल, जूल इज एनर्जी, करेक्ट? यस तो सर। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसका डायमेंशन क्या आएगा बता? M1। Sir, हाँ, is 10 raised to 7 the correct answer? यस, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया श्लोक। क्या बात है? L1 M1 T माइनस 2, ये 1 1 1 लिखा। चलो अभी सुनना आंसर। 1 1 1 क्यों? ये MK सिस्टम में इसके लिए M1 L2 T माइनस 2, बराबर। सिमिलरली ये भी एनर्जी का ही यूनिट है, ये भी एनर्जी का ही यूनिट है। तो इसको भी सेम ही लिखूंगा, M1 L2 T माइनस 2, बट दिस इज कौन सा सिस्टम? CGS, तो इसको मैं 2 से डिनोट करता हूँ। ये MK सिस्टम है, ये CGS सिस्टम है, दोनों एनर्जी डायमेंशन दोनों के सेम ही आएंगे, बराबर है। तो 1 1 1 is for MKS unit and suffix 2 is for CGS unit. Now I have to find out X. So can I say X is equal to M1 L1 M1 L2 T minus 2 in MKS and M2 L2 T minus 2 in CGS। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने का जरूरत नहीं है। This is just for you. Now we can separate similar quantities. M1 upon M2 raised to 1 multiplied by L1 upon L2, M1 upon M2 raised to 1, L1 upon L2 raised to 2, T1 upon T2 raised to minus 2। जो नहीं समझेगा वो रोक देना मुझे। अभी सेम क्वेश्चन, मास। मास किसमें मेजर होता है? MKS यूनिट में kg, और मास मेजर होता है ग्राम, बराबर, रेज़ टू पावर 1। लेंथ मेजर होता है मीटर, यहाँ पे लेंथ मेजर होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, इनटू टाइम मेजर होता है सेकेंड, इसमें भी टाइम मेजर होता है सेकेंड, रेज़ टू माइनस 2। ये दोनों सेम यूनिट है, कट हो जाएगा, 1 बचेगा, उसका कोई टेंशन नहीं आएगा। यहाँ पे सॉल्व करो, यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन। नाउ हाउ मच kg इज ग्राम? सो वी हैव 1000 ग्राम अपॉन ग्राम का पावर 1। हाउ मच मीटर इज सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर इज मीटर रेज़ टू पावर 2, करेक्ट?
सो यहाँ पे ग्राम और ग्राम कट हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हुआ, 2 बचा। x इज इक्वल टू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर मतलब 4 जीरो, 4 और 3 कितने जीरो हो गए, 7 जीरो, तो आई कैन से 10⁻⁷। सो फाइनल आंसर इज 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्न। बोलो क्या क्वेश्चन, क्या डाउट? अभी मैं आपको और दो सम देता हूँ, पहले ये नहीं समझा होगा तो आगे कुछ भी नहीं समझेगा। श्लोक को छोड़ के मुझे बताओ किसको क्या डाउट है। पहले क्या किया मैंने, जूल एमकेएस यूनिट में इसका यूनिट लिख दिया, सफिक्स 111 दे दिया, पावर 1 2 -2, यहाँ पे और गया अगेन जूल, सॉरी अगेन एनर्जी, सफिक्स 2 2 2 दे दिया। एक्स फाइंड करना है, एक्स इधर आ गया, ये दोनों को, ये एमकेएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, ये सेपरेट कर दिया, m with m, l with l, t with t with respect to powers. In MKS unit, mass is measured in kg. In CGS system, mass is measured in gram. In MKS system, length is measured in meter. In CGS, in centimeter. Time तो दोनों में second है. Now we have to convert kg to gram. That is 1000 gram upon gram. ये कट हुआ. We have to convert meter into centimeter. 100 centimeter upon centimeter. ये कट हुआ. 100 raised to 1. 100,000 raised to 1. 100 raised to 2. Total 0. 10 raised to 7. So we can write 1 joule equals to 10 raised to 7 ounce. 1 joule 10 raised to 7 ounce. बोलो श्रुति, वैष्णवी, शारिक और विराज। नो सर। No, sir. लिख लो। Shloक, you find out relation between 1 Newton equals to x dian. 1 Newton और आप लोगों का हो जाएगा तो आप लोग भी ये स्टार्ट करना है। 1 Newton is how much dian? सर 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन ऐसा आ रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Right.
डन। चलो आगे 10⁵ सबका। यस सर। सर ये वाला हुआ, न्यूटन वाला नहीं। अच्छा न्यूटन वाला करना। और न्यूटन इज एक्सपेंस। So this is all about the uses of dimensional analysis. So तीन तरीके के यूज देखे अपन ने। पहला करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, जो भी इक्वेशन दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। दूसरा अपन ने देखा कि रिलेशन बिटवीन फिजिकल रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। हाँ न्यूटन के लिए फोर्स का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ हाँ, फोर्स दोनों बाजू फोर्स का फॉर्म। ओके। एंड थर्ड यूज अपन ने देखा टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, सो तीन यूज है। तीन यूज में से एक यूज 100% एक्सप्लेन करने को आने वाला है। तीन यूज में से एक यूज 100% एक्सप्लेन करने को आने वाला है एग्जाम में। हो जाएगा तो बोलो। 1 न्यूटन इज इक्वल टू x टाइम हो गया। नो सर। हो जाएगा तो बोलो। बाकी लोगों का हो गया। नहीं आ रहा तो बोलो, मैं करता हूँ। सर हो गया। विराज, हाँ वैष्णवी, सर हो गया। श्रुति। सर वो सॉल्व गया करो सर। ना थोड़ा सा न्यूटन वाला। न्यूटन का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स का डायमेंशन लगा दो, लगा दो। ट्राई करेगा तो ही आएगा भाई। एंड क्या फॉर्मूला, डायमेंशन लगा दोनों बाजू। एक बाजू 1 लिख, एक बाजू 2 लिख, फिर डिवाइड कर दो एक्स का वैल्यू, फिर पावर सेपरेट कर जैसे मैंने किया था, उसी को देख के करने का है। चल बोल मेरे को। उधर केजी सब्स्टिट्यूट किया, इधर किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे मास को? केजी आएगा ना, सेम है ना, मास इज ऑलवेज इन केजी ना बेटा। एंड फॉर डाइन? And in for gram, because this is CGS MKS system, this is CGS system, same thing will come.
Okay. दिस इज MKS, दिस इज CGS, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा। और this is measured in kg, meter kg and second. This will be in gram, centimeter and second. सेम मेथड से जाएगा, 10 का पावर थोड़ा चेंज होएगा, that's it. कितना है 10 का पावर बता। सर वही सेम आ रहा है, डिफरेंस कुछ नहीं आ रहा है। फोर्स कितना है तेरा? फोर्स का L1 बता, क्या? फोर्स का डायमेंशन बता। M1 L1 T⁻²। फोर्स इज इक्वल टू मास M. इनटू एक्सेलरेशन। मास तेरा क्या है? m है, बराबर है। एक्सेलरेशन L1 T⁻², बराबर ना? हाँ L1 T⁻², L1 M1 T⁻², मैंने भी वही लिखा सर। बराबर है, परफेक्ट है। अभी तेरा गड़बड़ किधर हुआ? तो यू कैन से x इज इक्वल टू L1 M1 T⁻² अपॉन L1 M1 T⁻²। अभी सेपरेट करना है। L1 अपॉन L2 का पावर 1, M1 अपॉन M2 का पावर 1, M1 अपॉन M2 का पावर -2। सेम कैसा आएगा देख? ये आएगा कितनी मीटर, ये आएगा सेंटीमीटर, ये आएगा केजी, ये आएगा ग्राम, और ये आएगा सेकेंड, ये आएगा सेकेंड, ये कट हो जाए। तो दिस इज 100 अपॉन 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, करेक्ट? तो ये गया केजी, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, ये गया, वो तो कट हो गया। 1000 into 100 10⁵ मेरा 7 कैसा? क्या मिस्टेक किया? नहीं सर करेक्ट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में ये हो गया था। बस चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान से करा भाई, ये मिस्टेक नहीं होना बनता है। नाउ ये अपन ने देखा कि डायमेंशन एनालिसिस के 3 यूज तो देख लिए। नाउ वी हैव टू सी द लिमिटेशंस। नाउ यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे शेयर हुआ, टेक्स्ट बुक दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस Yes, sir. Okay, so I am on the point 1.6.2 limitations of dimensional analysis. So we have seen the 3 uses. पहला करेक्टनेस चेक करना है, दूसरा रिलेटेड फिजिकल के बीच में जो डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है उसके बीच में क्या रिलेशन है, और तीसरा कन्वर्जन फैक्टर। तीनों के अपन ने 3-3 2-2 एग्जांपल देखे हैं, किस तरीके से इसका यूज हमको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अभी ध्यान से समझना, तो जो पॉइंट नहीं समझा वो बोलना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है। The value of dimensional less constant can be obtained with the help of experiments only. जैसे हमने वो उसमें सेकंड उसमें लिया था k, where k is constant that can be found out by experiment. We cannot find k with the help of dimensional analysis. So this is the biggest drawback. कि जो k का वैल्यू आता है वो हम डायमेंशन से नहीं फाइंड कर सकते, we have to solve by experiment. ठीक है, तुमको ये डायमेंशंस मिल जाएंगे, लेकिन कांस्टेंट जो होगा, जैसे वो 2 पाई था, जैसे हमने पहले लिया ना, t इज इक्वल टू k इंटू रूट ऑफ L/G, जिसमें k का वैल्यू 2 पाई आता है, वो 2 पाई एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², तो हाफ जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंट से ही आएगा। ये उसका ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है। पॉइंट नंबर 2, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड to derive relation involving important trigonometric, exponential and logarithmic function, as these quantities are dimensionless. Trigo
एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशन एनालिसिस ये हम डिराइव नहीं कर सकते बिकॉज ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। दूसरा लिमिटेशन, पॉइंट नंबर 3, द मेथड is not useful in constant of proportionality is not dimensionless quantity. For example, अभी समझना ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी ये समझोगे तो आपको समझ में, F is directly proportional to m1 by m2 upon r square. So F is equal to g into m1 upon m2 upon m1 into m2 upon r square. तो यहाँ से ये जो g है ना, डायमेंशनल कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट g, इसका डायमेंशन हम निकाल नहीं सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डायमेंशन निकलेगा नहीं। तो जो भी कांस्टेंट है उसके डायमेंशंस वी कैन नॉट फाइंड आउट। तीसरा लिमिटेशन, फिर से बताओ, दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी ये जो g है ना, ये भले कांस्टेंट है लेकिन इसके भी डायमेंशंस आएंगे। The constant of proportionality g is not dimensionless, thus earlier method will not work. जैसे नंबर आता है 2 पाई, हाफ, ये तो हमको समझ में आता है कि भाई इसके डायमेंशन में निकलेंगे, लेकिन यहाँ पे g है, g डायमेंशन है g का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बराबर है। अभी g का डायमेंशन में कैसे निकाल सकता हूँ वो भी आपको बताता हूँ, जैसे समझना। F is equal to capital G m1 m2 upon r square. So I can say G is equal to F r square upon m1 into m2. Force बता न्यूटन, ये आएगा L1 m1 t minus 2 r square, r is meter, L2 बराबर है, m1 मास into m2, ये भी मास m1, ठीक है। सो L1 और ये 1 plus 2 हो जाएगा 3 m1 t minus 2 upon m2, ये जाएगा ऊपर L3 m minus 1 t minus 2, ये आगे मेरे g का डायमेंशन। तो फिर अकॉर्डिंग टू, लेकिन वो तो रॉन्ग डायमेंशन होगा क्योंकि g तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होना चाहिए ना। अरे बेटा g, ये g कौन सा बात कर रहा हूँ, ये g कौन सा है, ये g जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ग्रेविटी का है। अच्छा, ओ ओके। Which is the two bodies when kept in contact or in some distance, they apply force on each other. तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, वो ग्रेविटी वाला अलग है, ये वाला अलग है। ओके ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, कैपिटल जी, वो स्मॉल जी है। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। वो L1 m0 t minus 2 स्मॉल जी है, लेकिन ये कैपिटल जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। तो डायमेंशन जो है वो क्या बोलते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसके डायमेंशन नहीं निकलेंगे, लेकिन ये तो डायमेंशन निकल रहा है, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। मैंने इसके लिए सॉल्व करके दिखाया क्योंकि दिस इज नॉट अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, द करेक्ट इक्वेशन contains, if the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. अभी मैं सिर्फ डायमेंशन लिखा, तो इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन L1 m0 t minus 1, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन क्या आएगा, L1 m0 t minus 1। तो डायमेंशन लिखने से मैं सिर्फ लिख दिया L1 m0 t minus 1, और आपको पूछा कि भाई बताओ इसमें इनिशियल कौन सा फाइनल कौन सा, तो आप बता सकते हो? नो सर, नहीं बता सकते। दूसरा, अगर एनर्जी है, कोई भी एनर्जी, हीट भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी, सबका यूनिट जूल है। तो अगर मैंने एनर्जी का यूनिट लिखा या डायमेंशन लिखा, तो कौन सा एनर्जी है, हीट है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? तो सिर्फ डायमेंशन लिखने से जिसके यूनिट सेम है, तो अपने को कौन सा क्वांटिटी प्रेजेंट है वो पता नहीं चलेगा। सो दिस इज द फोर्थ लिमिटेशन। If the correct equation contains some more terms of the same dimension, it is not possible to know about their presence using dimensional equation. For example, with standard symbol, the equation is half 80 square is dimensionally correct.
But however, the complete equation is ut plus half at square. तो ये भी correct है dimensionally, but ये equation wrong हो गया. Correct equation ये dimensionally correct है, लेकिन ये technically wrong है. This is technically wrong. But you cannot say dimensionally wrong है. Dimensionally correct है. बोलो क्या doubt? No doubt, sir. No doubt, sir. शाबाश. एक बार चारों के चारों go through करेंगे भाई 2 मिनट. Go through all the 4 limitations. 3 use है और 4 limitations है. चलो चलो. Moving on to the next topic. कोई क्वेश्चन है? कुछ पूछना है क्या? No, sir. No doubts. लो शारिक, श्रुति, No, sir. No, sir. विराज, No, sir. पक्का? Yes, sir. शाबाश. हाँ, जो जो हुआ है वो सब आपको रीड करके रखना है. हाँ. So we are moving on to the next topic now. Accuracy, precision and uncertainty in measurement. मुझे बताओ एक्यूरेसी का मीनिंग क्या है और प्रिसीजन का मीनिंग क्या है आपके हिसाब से? What do you mean by accuracy? Everyone should answer. What do you mean by It's accuracy? accurate. It means that it's correct. Okay. What do you mean by precision? Same thing. Okay. मतलब ये दोनों में कोई फर्क नहीं है. According to Sharik, both are same. Okay. चलो आगे. ज्यादा फर्क नहीं है. ज्यादा फर्क. Okay, ठीक है. वैष्णवी, सोचो. हाँ? मुझे थोड़ा सोच समझ के आंसर देना बाबा. एक्यूरेसी क्या है? प्रिसाइज बोलते ना, प्रिसाइज है. एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. अनसर्टेनिटी तो मालूम है अपने को, कॉमन वर्ड है. व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन? यू कैन डिफाइन. जैसे शारिक ने बोला, चलो ठीक है, मुझे हर एक का आंसर चाहिए. व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग फॉर द वर्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? वैष्णवी चलो फटफट. Whatever you think, you tell me. जो भी समझ में आता है बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को कोई परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, बट आई जस्ट वांट व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द वर्ड्स. दैट्स इट. Sir, accuracy, I feel like
to be accurate, to be very perfect in something, and for precision, to be precise, to be to do something in depth, something like that. ओके ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, मैं समझ सकता हूँ। आगे वैष्णवी बोलेगी, अभी श्रुति ने बोला ना। So that means correct only na. Accurate is Yes, correct. sir. चलो मैं बताता हूँ तुम्हारा। हाँ वैष्णवी। Yes, so accuracy means exact type of answer at the exact number, and precise Okay. means it is not exact but it is accurate. Same, थोड़ा सा difference है दोनों में. ओके, थोड़ा सा फर्क हो सकता है। ओके विराज, विराज। Sir, accuracy means to be correct, हाँ और precise उसके थोड़ा सा हे भगवान, चलो ठीक है। तुम लोग को सबको एक ही चीज लगता है कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज दोनों बराबर ही है, सेम ही है। चलो अभी एक बात समझना, ऑलमोस्ट हम लोगों ने सेम आंसर दिए हैं। अभी एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, और इसमें अगर आपको डिबेट करना है तो अपन डिबेट भी कर सकते हैं। पहले मैं एक्यूरेसी का बताता हूँ। एक्यूरेट मतलब जो आंसर है उससे हमने जो आंसर निकाला, एक ऑलरेडी मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू। हाँ, लेट अस से आई कैन से A1 is true value and 1 you have measured value, बराबर। ये दोनों का डिफरेंस अगर 0 आता है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस 0 आता है, तो ये एक्यूरेट है। जैसे कि अगर मैंने इसका स्टैंडर्ड लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ये मुझे मालूम था, दिस इज ट्रू वैल्यू। मैंने आपको बोला आप ये मेजर करो और आपका आंसर आया 14.98, तो ये एक्यूरेट नहीं है, इसमें एरर आ गया 0.02 का सेंटीमीटर, दैट इज नॉट एक्यूरेट। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी क्या है, तो जो मेजर्ड वैल्यू है, ट्रू वैल्यू शुड बी सेम, दैट इज वी कॉल्ड एज एक्यूरेट मेजरमेंट। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू शुड बी सेम। जैसे अगर आप कोई एग्जाम लिखते हो तो उसमें 20 मार्क का एग्जाम है या 100 मार्क का एग्जाम है, अगर आपको 100 में से 100 आते हैं तो आप एक्यूरेट हो, बराबर। दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। डिफरेंस आ सकता है, एक्यूरेट में बोल सकता हूँ। अभी सपोज, अभी बात समझना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अभी एक बात समझो बहुत ध्यान से, हाँ बहुत ध्यान से समझना। मेरा ट्रू वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और मेरा मेजर्ड वैल्यू 14.98 सेंटीमीटर, तो मैं बोलूंगा मैं कितना एक्यूरेट हूँ, कितना एक्यूरेट हूँ या कितना एक्यूरेट नहीं हूँ। चलो 0.02 एक्यूरेट, 0.02 accurate. मेरे एरर है, आई यस दिस इज आई एम नॉट एक्यूरेट 0.2, करेक्ट। अगर मेरा आंसर आता है 14 सेंटीमीटर, so I am not accurate by 1 centimeter, or I am accurate up to 14 centimeter, I am not accurate up to 1 centimeter. Now this is accuracy. So accuracy can vary, बहुत सारा वेरिएशन आ सकता है एक्यूरेसी में। जैसे अगर मैं अब ये 5 लोगों का एग्जाम लेता हूँ 20 मार्क का, तो किसी को 20 में से 20 आएगा, किसी को 19 आएगा, किसी को 18 आएगा, किसी को 15 आएगा। तो ये एक्यूरेसी दिखाती है आपकी 15 टाइम्स यू आर एक्यूरेट आउट ऑफ 20 टाइम्स, दैट इज एक्यूरेसी, दैट कैन बी वेरी पर्सन टू पर्सन। नाउ प्रिसिजन, प्रिसाइज इज द एग्जैक्ट वैल्यू। 15 है, 15 ही आना चाहिए, दैट इज हाउ प्रिसाइज यू आर। इट डज नॉट कंटेन एनी एरर, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, प्रिसाइज एग्जैक्ट आना ही चाहिए, दैट इज प्रिसिजन। इसमें एरर आ सकता है। एक्यूरेसी अभी एक टेक्निकल टर्म में समझाता हूँ। एक्यूरेसी में कंटेन एरर, प्रिसिजन शुड नॉट कंटेन एरर, सिंपल वर्ड्स। अब बोलो, किसी को कोई डिबेट करना है, But accurate means correct only na. बट एक्यूरेसी में कंटेन सम एरर। अभी मैं आपको बोलता हूँ 20 में से 20 में या 20 में से 18 है, तो आप एक्यूरेट हो?
18% मतलब out of that 90% you are accurate. I can say if you are scoring 18 out of 20, you are 90% accurate, but you are not precise. Okay. समझा? Technically Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. सब लोग Yes, sir. So this is the difference, accuracy and precision. Bang on target, precise. थोड़ा 19-20 accurate. वो उतना error आ जाता है. So when you bang on target 100 on 100, you are accurate as well as you are precise. कर लगा? Yes, sir. Yes, sir. कोई doubt? Yes, sir. No doubt, sir. Sir. Sure, आगे बढ़े. हो सर कर लो. Yes, sir. चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर. Otherwise, let us stop here. This topic will start in next lecture. Time table तो है ना आपके पास? Yes, sir. Yes, sir. है. ठीक है. ओके ओके, मैं फिर भी ये पोस्ट करता हूँ. मैं और डायमेंशंस निकालने के और क्वेश्चंस अभी पोस्ट कर रहा हूँ. डायमेंशंस निकाल के रखो. थर्सडे को लेक्चर रहेगा 7:30 बजे. उसमें फिर से डायमेंशंस हम डिस्कस करेंगे. श्रुति, तेरे डायमेंशंस तूने जो निकाले हैं वो मेरे को भेज. मैं चेक करके या उसके आंसर्स भेजता हूँ. तो उसमें कुछ गड़बड़ होगा तो हम डिस्कस कर सकते हैं. ओके Yes. चलो. सो फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट एक्यूरेसी का आगे वाला पॉइंट. सो ऑलमोस्ट आई थिंक ये चैप्टर अगले लेक्चर तक मोस्ट प्रोबेबली खत्म होना मानता है. Let's see. सर चलो. स्टार्टिंग में थोड़ा सा छोड़ा था हम लोग ने. हाँ वो एक खत्म करके वो, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में नहीं होगा. नेक्स्ट वीक में जाएगा. बट ऑलमोस्ट आई कैन से दैट के खत्म हो जाएगा. अगर हम एक्यूरेसी पे आए हैं तो आई थिंक वी विल डू. ठीक है. चलो एक बार गो थ्रू करना. कोई भी डाउट है तो पूछना. मैं वापस एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ. डन. Okay, sir. ओके चलो बाय. टेक केयर. सी यू ऑन थर्सडे. Bye, sir. Thank you. बाय Thank you. बच्चा. Bye, बाय sir. बाय Bye, बच्चा. sir.